Hello everyone, welcome to Diwane EAC and GATE, and I am Chandan Sharma. And in the last video, we have talked about the various questions that you have asked to me regarding the preparation. So today we are going to cover these three questions. First is EAC versus IRMS, and we will talk about their syllabus. Then how to start preparation for engineering services and IRMS. Then how to read for multiple exams. These are the three big questions that we are going to talk in this lecture. Okay, so first of all, engineering services and IRMS. So first I want to tell you that you may know this thing, like in mechanical engineering, before the IRMS, before means from up to 2018-19. So these are the services: IRSME, IRSS, then Central Engineering and Mechanical Engineering Services, then Indian Ordnance Factory. This was not in 2019. Then Defense Aeronautical Quality Assurance Services. In 2019, rank 1 from mechanical branch have opted this, and this service has only one seat in general, so he got that. Then A Geological Survey of India Engineering Services Group A, then Indian Defence Service of Engineering, Indian Naval Armament Services, Assistant Naval Store Officer, then AE in order. So this is the BRO, Border Road Organization. So these are the services. So after like we know that from 2020, so we are going to have a IRMS for railway. Okay, Indian Railway Management Services. So these two services will be not in the engineering services. Okay, so first of all, these are the services in the engineering services, and in IRMS now the services are IRSE, IRSS, IRSME, IRSEE, and IRSSE. Okay, so for this one is for civil. These two means IRSS is in every branch: civil, mechanical, electrical, and ENTC. These two will be for mechanical. Okay, this one is for electrical or ENTC. Okay, so you can see that these 5 services come from the engineering services, and plus IRTS plus IRAS plus IRPS. So these 3 services before up to 2019, these 3 services was filled with by the exam civil services examination, right? So after formation of IRMS examination, all these 8 cadres will be filled by IRMS. So अभी तक ये जो एग्ज़ाम्स हैं इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं आया है कि IRTS, IRS, IRPS कौन कौन भर सकता है. ओके, सो मे बी जो मैकेनिकल इंजीनियर वाले बंदे हैं, ओके, और इलेक्ट्रिकल और सिविल और ENTC वाले, सो वो शायद इनमें भी ऑप्ट कर सकें, या शायद आपकी चॉइसेस आ सकें. सो वो अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो इसके बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. पर एक चीज़ फिक्स है कि यहाँ पर जब कोई बंदा ऐसा मैकेनिकल भरेगा तो उसको मैकेनिकल का सिलेबस टेक्निकल सिलेबस वो तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए. इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. बाकी इसमें भी चांसेस हैं कि ये लोग जो यूपीएससी फॉलो करती है, फर्स्ट में प्री देन मेंस, एंड प्री में 2 पेपर, राइट, एंड मेंस में टेक्निकल पेपर जो कि रिटन होता है, आफ्टर दैट इंटरव्यू. यही सिस्टम फॉलो होना चाहिए. 99% चांसेस यही है. बाकी तो अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा कोई भी नहीं बोल सकता है. सो IRMS के थ्रू ये सर्विसेज जा सकती हैं. अब काफ़ी लोगों का ये कहना है कि सर हम IRMS की तैयारी करें या हम इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करें. सो इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में आपको शायद क्लियर ही होगा. IRMS के बारे में ये इतना जानना, बेसिक नॉलेज एक होना ही चाहिए. ओके, अब इसके बाद हम आते हैं कि अभी हमारे पास है क्या. देखिए कॉमन, देखिए सबसे पहले कॉमन EAC एक एग्ज़ाम है, देन यू आर हैविंग IRMS जो कि एक अगला एग्ज़ाम होगा. EAC के इसमें योर सिलेबस इज डिफाइंड. ओके, IRMS में टेक्निकल सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली डिफाइन है. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि यहाँ पर मेकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स
ये हट जाए ज़्यादा से ज़्यादा, पर मैक्सिमम चांसेस है कि ये नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि जो इंजीनियरिंग जो IRMS है उसका जो सिलेबस है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला ही फॉलो होगा, क्योंकि रोबोटिक्स एंड मेगाट्रॉनिक्स आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है। सो मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें नहीं हटेंगी, पर एक है होप, चांस एक है थोड़ा सा कि डिपेंड्स करता है। ओके, तो यहाँ पर टेक्निकल सिलेबस आपका डिफाइन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपका टोटल सिलेबस डिफाइन है, जिसमें आपका टेक प्लस GS पार्ट जो है वो डिफाइन है। अब यहाँ पर GS पार्ट इसलिए डिफाइन नहीं है क्योंकि इसमें IRTS IRPS जो फर्स्ट पेपर है वो सबका शायद कॉमन होगा, और कॉमन ही होना चाहिए, तो वो नहीं अभी डिफाइन है, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें शायद नॉन टेक्निकल वाले भी आ सकते हैं। तो अभी हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो आप टेक्निकल सिलेबस जो टेक्निकल है आपका, जो कि डिफ़ाइन है बहुत अच्छे से, ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का नोटिफिकेशन उठाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से डिफ़ाइन है, ये सिलेबस आपका डिफ़ाइन है, इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। और मैं प्रोडक्शन की तैयारी करवा रहा हूँ, और मानिए वो जो तैयारी करवा रहा हूँ अप टू 70 to 80% आपके लिए सफिशिएंट है। उसके ऊपर जो है वो आप क्वेश्चन से तैयारी करनी पड़ेगी, डिफरेंट आप क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे आपको डिफरेंट चीज़ें पता चलेंगी, काफ़ी बेसिक चीज़ें भी पता चलती हैं। सो कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे प्रोडक्शन हो गया, ओके, प्रोडक्शन के बाद आपका आ गया मेटलर्जी, जो कि आप मटेरियल साइंस जिसको बोलते हैं, देन IC इंजन, उसके बाद यहाँ पर जो आपका फ्लूइड मशीनरी होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं, फ्लूइड मशीनरी, और जो टर्बो इंजन भी जिसको काफ़ी लोग बोलते हैं, ये जो 4-5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से काफ़ी स्पेसिफिक पूछा जाता है, टॉम से काफ़ी स्पेसिफिक पूछा जाता है, सॉम से काफ़ी स्पेसिफिक पूछा जाता है। ये जो 4-5 सब्जेक्ट हैं, इसमें दिक्कत ये है कि इसका जो सिलेबस है काफ़ी अजीब सा है अगर आप देखेंगे। ओके, प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस, IC एंड ये अजीब सा क्यों है? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी काम आता है। प्रैक्टिकल नॉलेज सबके पास नहीं होता है। ओके, सो लाइक आई हैव कंप्लीटेड 2 years इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विथ माई जॉब। सो मेरे लिए थोड़ा सा प्रोडक्शन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अगर मेरे को इन इंटरव्यू ऑल्सो इट्स माई की एरिया, और जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो प्रोडक्शन के ऊपर ही मेनली हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और इसके अंदर आप जितनी मेहनत करेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा वैरायटी आपके पास आएगी, एंड उतने ज़्यादा तरीके के लोगों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो हाँ, ये चीज़ें, ये सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत हमेशा आएगी। अभी भी मेरे को अगर कोई पूछ लेता है फ्लूइड मैकेनिक्स से या फ्लूइड मशीनरी से, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो अजीब एरिया है, उनसे कुछ भी पूछा जा सकता है, और आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम बेसिक तो पहले कवर कीजिए। तो ये कुछ टेक्निकल एरिया है, नहीं तो काफ़ी लोग बोलेंगे सर आपने प्रोडक्शन पढ़ाया था बट उसमें से तो कुछ आया नहीं, अजीब सा ही आ गया। पर मानिए आप कम से कम पहले बेसिक तो आपको कंप्लीट करना है। तो ये होगा टेक्निकल पार्ट। इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, और ये टेक्निकल पार्ट आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज प्लस IRMS है। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपका काम है कि जो आपका सिलेबस है वो तो आपको रटा होना चाहिए कि ये टॉपिक हैं। ओके, देन इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो GS पार्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है इसके बारे में, और इसके लिए मैं स्पेशल एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पर अभी क्या बताने वाला हूँ आपको, ज़रा देखिएगा। GS पार्ट जो है आपका वो काफ़ी अच्छे से डिफाइन है, ठीक है। अब आप जब सिलेबस पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखिए कि की पॉइंट क्या है। ओके, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, तो वो आपको कहीं से स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा। एनवायरनमेंट में क्या बोला है, तो वो स्पेसिफिक एक दो, जैसे एनवायरनमेंट है उसमें एक लाइन दे दी है। ओके, तो इसमें पढ़ना क्या है, एनवायरनमेंट आपको पूरा तो नहीं पढ़ना है। फिर जैसे ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दे रखा है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, यू कांट कंप्लीट इट, राइट। सो हमारा कहाँ तक है प्रिपरेशन होना चाहिए। सो उसके लिए मैं आपको सोर्स बताता हूँ। सिर्फ इसके लिए 2 सोर्स है, 3 सोर्स मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। 3 सोर्स में से आप कुछ भी चूज़ कीजिए, तीनों ही आपको फॉलो करना है। फर्स्ट वन इज़ प्रीवियस ईयर। सबसे पहले फर्स्ट टेक आउट ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज एंड देन सॉल्व इट। और अगर सॉल्व नहीं भी हो रहे तो एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम विच एरिया द एग्जामिनर इज आस्किंग, और उनका फेवरेट एरिया क्या है। ओके, सो इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, एनवायरनमेंट से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, क्वालिटी मैनेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, एथिक्स से बहुत ही स्पेसिफिक कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब वो कब पता चलेंगी, जब प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करेंगे। ओके, देन सेकंड, एनवायरनमेंट एक टॉपिक है जो मैं एक आप बता देता हूँ। सौरभ
कुमार पांडे, ठीक है। ये सौरभ कुमार पांडे सर है, जिनसे मैंने भी मेडिस में पढ़ा था, अभी अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, और इनके फ्री वीडियोज़ हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए एनवायरनमेंट के ऊपर। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इनसे अच्छा आपको और कोई नहीं पढ़ा सकता है। सो इनके वीडियोस फॉलो कीजिए, ठीक है। अब जो थर्ड है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं है जीएस में, ठीक है। एक लाइन में है और वो ज़्यादा डिफाइन नहीं है, तो हम कहाँ से पढ़ें। तो जो मैंने फॉलो किया था, मैं आपको बता रहा हूँ, मेड इजी की जो बुकलेट आती है जीएस के लिए, वो मैंने फॉलो की थी। उसके अलावा मैंने कुछ फॉलो नहीं किया था। उसके अलावा जो फॉलो किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट, जो फोर्थ है आपका, ठीक है। ये चीज़ें आप फॉलो कीजिए, और जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ें ही आपके, क्योंकि सबके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, बट कौन बहुत ज़्यादा शिद्दत से ये चीज़ें फॉलो करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आपको मेनली टेक्निकल एंड जीएस दोनों ही पता है, लेकिन आईआरएमएस के लिए मेनली टेक्निकल सिलेबस है, तो टेक्निकल सिलेबस पे ज़्यादा फोकस रखिए एंड तब, और ये स्टार्ट कीजिए, ओके, जीएस पार्ट के लिए। देन जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, राइट। सो उसके लिए हम पहले तो दो पार्ट है, टेक्निकल एंड जीएस। अभी हम इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ओके। इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहे हैं और आईआरएमएस अभी डिफाइन नहीं है, तो हम इसलिए इसमें आप दोनों ही ले सकते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज प्लस आईआरएमएस, क्योंकि टेक्निकल तो दोनों का सेम ही है, ओके। सो पहला क्वेश्चन एक बंदे ने पूछा था, व्हेन टू स्टार्ट जीएस टॉपिक, एंड सेकंड बंदे ने कहा था, कैन वी स्टार्ट जीएस टॉपिक फ्रॉम अक्टूबर सो दैट वी कैन लर्न इट इन लास्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं मैथमेटिकली देखूं तो टेक्निकल कवर्स योर 300 मार्क्स एंड दिस 200 मार्क्स, सो दिस इज़ योर 40% सिलेबस एंड दिस इज़ योर 60% सिलेबस। सो इफ़ यू आर हैविंग 1 ईयर प्रिपरेशन, राइट, तो उसका 40% तो आपको यहाँ देना ही चाहिए, 40 नहीं तो 35% देना ही चाहिए, ओके। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, 300 मार्क्स में से लास्ट ईयर ही जैसे देख लीजिए, जो मैक्सिमम मार्क्स थे 152 थे, देन मेरे को याद है मेरे 126 थे, एक बंदे के 130 मार्क्स थे, अराउंड 130 या 135, या दो बंदों के मान लीजिए, दो बंदों के थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने बंदों के थे, लेकिन हाँ मेरे से ऊपर 2 या 3 ही बंदे थे, मेरे 126 मार्क्स थे और 2 या 3 बंदों के मेरे से ज़्यादा थे, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब जीएस ऐसा तो था नहीं कि हम लोगों ने टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा नहीं था, स्टिल द टॉपर इज़ 50%, मैं 126 पे था, 130 के ऊपर एक या दो बंदे थे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे 96 मार्क्स थे, टॉपर के भी 106 थे, 110 तक हाईएस्ट गया था। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी बंदे 50% मार्क्स ला रहे हैं। अगर पेपर थोड़ा सा इजी आ जाए तो यहाँ पर बंदे 120 130 भी ला सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप कितना भी ज़्यादा टेक्निकल पढ़ लें, कितना भी ईजी पेपर आ जाए, 300 में से आप मैक्स टू मैक्स 210 मार्क्स ला पाएंगे, 210, या जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चा है 220 230 ला सकता है, बट हर बंदा वो ब्रिलियंट बनना नहीं होता है। तो यहाँ पर एक बंदे को क्या करना चाहिए कि उसका जो जीएस पार्ट है वो भी कवर करना चाहिए। भाई मैं यहाँ पर अगर 180 ही ला पा रहा हूँ और यहाँ पर 120 लेके आ रहा हूँ, 300 मार्क्स आउट ऑफ 500 उसका सिलेक्शन होना ही होना है। अगर आप 300 आउट ऑफ 500 मार्क्स ईएस इंजीनियरिंग के पेपर में लाते हैं, चाहे पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो, मीडियम हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है, 300 इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड स्कोर, ऑलवेज। सो याद रखिएगा, जीएस पार्ट अगर आज से आपने पढ़ाई स्टार्ट की है तो आज से जीएस भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जीएस को छोड़िए मत। जीएस में एक मैथमेटिक्स करके भी टॉपिक एडेड है, रीजनिंग का भी एक टॉपिक एडेड है। भाई ये चीज़ें तो आप गेट के लिए भी पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें को क्यों छोड़ रहे हैं आप, जो कि श्योर शॉट है। मेरे मैथ्स और रीजनिंग का 2019 में एक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था, शायद इसी कारण मेरे मार्क्स ठीक ठाक बन गए थे, ओके। तो ये चीज़ें छोड़िए मत, ये बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओके। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद अब यहाँ पर काफ़ी लोगों के दिक्कत है कि भाई मैं फ्रेशर हूँ, मैं रिपीटर हूँ, मैं वर्किंग हूँ। ये 3 टाइप के लोग हैं।
फ्रेशर मतलब ये फर्स्ट ईयर वाला भी हो सकता है, सेकंड ईयर वाला भी हो सकता है, फोर्थ ईयर पास आउट भी हो सकता है। वर्किंग में तो सब एक ही जैसे हैं, किसी का कुछ ज़्यादा काम हो सकता है, किसी का। रिपीटर में वो 1 साल का रिपीटर हो सकता है, 2 साल का रिपीटर हो सकता है। ओके, सो हम कुछ चीज़ें तो बेसिक है सबके लिए, हर एक बंदे के लिए बेसिक है, जो कि फर्स्ट है बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट। सो अगर आप फ्रेशर हैं, आप रिपीटर हैं, आपने 10 बार एक ही टॉपिक पढ़ रखा है, आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है, सबसे फर्स्ट है बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट एक बार रिवाइज़ कीजिए। रिवीजन, अगर कोई बंदा रिपीटर है तो उसका ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ओके, कोई बंदा फ्रेशर है तो उसको तो ज़ीरो से स्टार्ट करना है, या फिर आपने कॉलेज में कुछ ना कुछ तो पढ़ाई है जो कहीं से पढ़ेंगे। तो सबसे मेन चीज़ कहाँ से पढ़ सकता है कोई बंदा, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं बात करूँगा फ्रेशर्स एंड रिपीटर्स वर्किंग क्लास की। जो बंदे अभी नए नए हैं इस चीज़ के लिए, सबसे पहले आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कंसेप्ट क्लियर बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स में ही है। कंसेप्ट क्लियर के लिए आप क्या देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट आप कहीं से वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि दीवाने ईएसी वाले प्रोवाइड करते हैं, या तो आप साथ में वीडियोस तो देखिए, साथ में हमेशा बोलता हूँ रेफरेंस बुक्स फॉलो कीजिए। रेफरेंस बुक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी कोचिंग का पोस्टल कोर्स ले सकते हैं, और मेड इजी का पोस्टल कोर्स मैंने लिया है एंड इट इज़ गुड। देन या तो आप डायरेक्टली रेफरेंस बुक, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए आर के बंसल है, देन भंडारी है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये जो रेफरेंस बुक वाला टॉपिक है, काफ़ी बंदे मुझसे ये क्वेश्चन पूछने वाले कि सर रेफरेंस बुक कौन से। सो प्लीज़ फॉलो माय वीडियोस। मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है जो मेंस के लिए बनाया था, उसके अंदर रेफरेंस बुक के नाम दे रखे हैं मैंने सारे, और वो रेफरेंस बुक, बात मानिए, बहुत ही सटीक है। और उससे अच्छे रेफरेंस बुक आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज, IRMS, इंडिया में जितने भी एग्जाम है, उससे अच्छे रेफरेंस बुक नहीं मिल सकते। उससे हाई लेवल पे भी नहीं जाना है, उससे लोअर लेवल पे भी नहीं जाना है। क्योंकि होता क्या है, कई सारे जो ऑथर्स हैं उसमें मिस प्रिंटिंग होती है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल, जैसे भंडारी में ही मैं बता रहा हूँ, एक टाइप का क्वेश्चन है भंडारी में जो कि गलत सॉल्व है, वो जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बंसल में फॉर्मूले, जो आर के बंसल है फ्लूइड मैकेनिक्स की, उसमें फॉर्मूले गलत दे रखे हैं। सो हर एक बुक फॉलो नहीं करनी है, उसमें मैंने आपको जो बता रखा है वो बुक फॉलो कीजिए और आराम से आपका हो जाएगा। हाँ, तो कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए जो थर्ड है ये कि अगर आपके पास टाइम है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कोचिंग लगा लीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत शॉर्ट टाइम में, थोड़ा सा श्योरिटी आती है, थोड़ा सा क्या होता है कि हमारा मनोबल भी ऊपर उठता है उसके लिए। तो ठीक है, आप कोचिंग लगा सकते हैं। और ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैं सोचता हूँ। और एक और चीज़ है जो कि हर बंदा भूल जाता है, लोग वीडियो देख लेते हैं, रेफरेंस बुक देख लेते हैं, कोचिंग कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट करने के लिए, बेसिक क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं करते हैं। सो बेसिक क्वेश्चन सॉल्विंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। भले ही आप कोई से भी, आपको भगवान पढ़ाने आ जाए, लेकिन जब तक आप खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे वो बहुत दिक्कत है। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, सबसे फर्स्ट, अगर आप कोई रेफरेंस बुक सॉल्व कर रहे हैं तो उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स देखिए। ओके, सेकंड, जो प्रीवियस ईयर बुक्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो तो मतलब ये तो आपके लिए बाइबल होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सोते जागते, घूमते टहलते कभी भी सॉल्व करिए और करते रहिए। और थर्ड है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ के लिए जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमने जो हमारा दीवाने EAC एंड गेट है, ये भी हमने इस पे हमने स्टार्ट किया है। ओके, टेस्ट सीरीज़, और काफ़ी मिनिमम रेट पे, इतने मिनिमम रेट पे इंडिया में कहीं भी टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलेगी आपको। तो ये टेस्ट सीरीज़ आप फॉलो कीजिए, और इसके क्वेश्चन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि काफ़ी सिमिलर पैटर्न पे है गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड PSUs के एग्ज़ाम पे। अब मैं बहुत लो लेवल पे इसलिए हम क्वेश्चन सेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इतने हाई लेवल, मतलब थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे तो वो आप मतलब उससे ईजी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, और हम इसमें वैरायटी देने की कोशिश कर रहे हैं, और वैराइटीज़ हैं, काफ़ी लोगों से मुझे ये इन आउटपुट मिला है। ओके, देन ये चीज़ें हो गई। देन रिपीटर्स। अब रिपीटर्स क्या करें, ये तो वो हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। ओके, तो सॉरी भाई, राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, ठीक है। देन रिपीटर्स के लिए सबसे फर्स्ट है, आपके पास सब कुछ है रिपीटर का, ठीक है। तो आप अपने नोट का रिवीजन जितनी बार कर सकें उतनी बार करिए भाई, ठीक है, जितनी बार कर सकें। देन क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीवियस ईयर, गेट प्रीवियस ईयर, और आपको कोई सा भी प्रीवियस ईयर या नया ईयर या टेस्ट सीरीज़ मिलती है, ठीक है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ PSU या टेस्ट सीरीज़ मिलती है, सब सॉल्व कीजिए, जहाँ से आप सॉल्व कर सके उतने कीजिए। मेरा टारगेट था, मैं आपको बताता हूँ, मैंने लगातार सितंबर 2018 टू दिसंबर 2018, सितंबर अक्टूबर जो भी जितने भी महीने आप गिन लीजिएगा, मैं डेली टारगेट रहता था मेरा 300 क्वेश्चन पर डे। और ये होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोग बोलेंगे सर इतने क्वेश्चन नहीं होते, अरे भाई होते हैं, मान बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। 300 नहीं कर पाएंगे, 200 तो करेंगे ना भाई, 200 क्वेश्चन पर डे। और ये विश्वास मानिए, काफ़ी लोग 400 500 करते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने हर चीज़ सॉल्व कर रखी है, और उनका इस बार नहीं हुआ लेकिन अगली बार पक्का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें रिपीटर्स के लिए, आप अपने नोट रिवाइज कीजिए, जितने क्वेश्चन दे सकें, जितने टेस्ट सीरीज, जितने मॉक टेस्ट दे सकें, उतना ही फ़ायदा है आपके लिए। आपको और कुछ भी नहीं करना है, जस्ट बिलीव कीजिए कि जो मैंने पढ़ा है वो और अच्छे से रिवाइज करना है। और उसमें छोटे छोटे गैप्स होते हैं, जो गैप होते हैं वो आप अपने आप फिल होते जाएंगे। जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज देंगे उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, उतने नए टॉपिक्स मिलेंगे, तो आप धीरे धीरे फिल करते रहिए, ठीक है। गूगल सर्च कर लीजिए, रेफरेंस बुक देख लीजिए। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया ऊपर, कि जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट, जो ये फ्रेशर्स एंड वर्किंग क्लास के लिए, यहाँ पर जो आप रेफरेंस बुक देखते हैं, तो इसमें से काफ़ी लोगों को ये होता है कि रेफरेंस बुक कभी ज़िंदगी में पढ़ी नहीं है, जैसे मैंने नहीं पढ़ी, तो रेफरेंस बुक समझ में ही नहीं आता है कि रेफरेंस बुक में चल क्या है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आपकी कॉलेज बुक्स होती हैं, एक्चुअली अगर आप देखेंगे कि जो कॉलेज बुक्स होती हैं, जो किसी मतलब ऐसे कोई भी बंदा कॉलेज बुक बना देता है, कोई भी बंदा तो नहीं बनाता, बट उनका जो लेवल होता है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, अगर मैं बोलूँ ख़राब या नीचे होता है, जो आपकी रेफरेंस बुक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उससे पहले आप वो कॉलेज बुक सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि कॉलेज बुक भले ही आपने ना पढ़ी हो, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे तो देखी थी ना, तो आपको फेमिलियर होता है, वहाँ पर कंसेप्ट क्लियर, 100% कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कम से कम 50% तो होंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉलेज बुक। जो बंदा अभी कोचिंग नहीं जा सकता है, या वर्किंग है, या बोल रहा है कि सर मैं अभी कॉलेज में ही हूँ, स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो अपने कॉलेज बुक से क्वेश्चन, कॉलेज बुक में भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं पुणे यूनिवर्सिटी से हूँ, और इसमें जो मशीन डिज़ाइन की हमारी बुक्स है, थ्योरी ऑफ मशीन की जो बुक है, हीट ट्रांसफ़र की जो बुक्स हैं, ये काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है, मतलब एक लेवल तक है। तो मैंने इनको सॉल्व किया है, ओके, जब मैं कॉलेज में ही था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा फ़ायदा हुआ उस चीज़ का। तो ये हो गया कैसे तैयारी करनी है। थर्ड जो क्वेश्चन है, कि जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, सर मल्टीपल एग्ज़ाम, इसकी तैयारी कैसे करें। अब मैं आप लोगों का एक जो मिथ है वो तोड़ना चाहता हूँ। मल्टीपल एग्ज़ाम, भाई मल्टीपल एग्ज़ाम एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए होता ही नहीं है। मैकेनिकल, अगर मैं सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर के बोल रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम ही है, ठीक है, सबके लिए सेम है। आपके पास कितने एग्ज़ाम है, देखिए, टेक्निकल एग्ज़ाम की बात हो रही, गेट, EAC, PSU, PARC, इसरो एंड SSC JEE, ये सारे एक ही एग्ज़ाम है, ओनली वन एग्ज़ाम। क्यों एक ही एग्ज़ाम है भाई? एग्ज़ाम डिफ़ाइन किससे होता है? एग्ज़ाम इससे नहीं डिफ़ाइन होता है कि आपको जॉब क्या मिल रही है, एग्ज़ाम डिफ़ाइन होता है सिलेबस से, ठीक है। अगर कोई भी एग्ज़ाम का सिलेबस सेम है तो वो एग्ज़ाम एक है, भले ही उसमें एक एग्ज़ाम थोड़ा टफ आ सकता है, थोड़ा सा इजी आ सकता है, बट अगर सिलेबस सेम है, सिलेबस डिफ़ाइन करता है एग्ज़ाम, ना कि जो जॉब मिल रही है वो डिफ़ाइन करता है एग्ज़ाम, राइट। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन की थी, मेरे को गेट में 255 रैंक आई। SSC JEE मैंने 2 बार क्लियर किया। PARC का रिटर्न मैंने क्लियर किया। इसरो मैंने नहीं क्लियर किया, मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने कोई इसरो क्लियर किया। PSUs में जितने भी PSU जाते थे वाइजैक को छोड़ के, मैंने सबका एग्ज़ाम क्लियर किया, ठीक है। अब मेनली मैंने इंटरव्यू देने को मेरे को नौबत नहीं आई। एक का मैंने दिया भी था, BL का हो गया था, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। NLC का दिया था, हो गया था, ज्वाइन नहीं किया था। सो ये चीज़ें आपको समझनी है कि मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम की पढ़ाई की थी और मैंने क्लियर सारे एग्ज़ाम किए, इसरो छोड़कर। इसरो में मेरा एक बार 2 मार्क्स से रह गया था, और एक बार 4.5 या 4 पॉइंट समथिंग मार्क्स से रह गया था, ओके। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आप एक सिलेबस लीजिए, सिलेबस थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है, 80 to 90% सिलेबस तो लगभग सबका सेम ही है, ठीक है। SSC JEE में तो मैंने कभी, लोग बोलते हैं SSC JEE में तो सर करंट अफेयर भी आता है, मैं तो करंट अफेयर कभी पढ़ के नहीं गया, फिर मेरा SSC JEE क्लियर हो गया था। सो आपने जितना पढ़ा उसके ऊपर विश्वास रखिए और पढ़ते रहिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे, उसी को एक होता है ना कि हमारे पास एक तलवार है, सर मेरे को 2 तलवार चाहिए। क्यों चाहिए 2 तलवार भाई? जो आपकी तलवार है उसी को और ज़्यादा शार्प कीजिए ना,
दो ब्लंट तलवार से अच्छा एक शार्प तलवार होगी, राइट। सो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मेरे को एक ही तलवार रखनी है जो कि इतनी ज़्यादा शार्प हो कि मैं हर एक एग्ज़ाम को कट करते जाऊँ, राइट। सो आपका नॉलेज इस टाइप का होना चाहिए। तो मल्टीपल एग्जाम के पीछे ज़्यादा भागिए मत कि सर अभी तो गेट है तो मैं गेट के लिए पढ़ूंगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ूंगा। नहीं, आपका सिलेबस सेम है, आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, एग्जाम आ रहे हैं एग्जाम देते रहिए। हाँ, अगर कुछ स्पेसिफिक है, जैसे कि मान लीजिए इंजीनियरिंग सर्विसेज आ गया तो आपको रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। किसी पीएसयू का एग्जाम आ गया तो पीएसयू में जैसे अगर कोई पावर प्लांट से रिलेटेड है तो पावर प्लांट के थोड़े क्वेश्चन पावर प्लांट में थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया। गेट है तो गेट में न्यूमेरिकल बेस्ड मैंने ज़्यादा कर लिया। इंजीनियरिंग सर्विसेज है तो थोड़ा थ्योरी बेस्ड भी देख लिया। बीआरसी है तो बीआरसी में मेरे को थोड़ा सा डीप में देखना पड़ेगा, ओके। तो उसके लिए थोड़ा वैसा हो गया। इसरो के प्रीवियस ईयर मैंने देखे तो कुछ एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते तो वो पढ़ लिए। एसएससी जेई है तो एसएससी जेई में जनरली फॉर्मूले बेस पर एंड थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल पे ध्यान ही नहीं दूंगा क्योंकि ज़्यादा न्यूमेरिकल आप विदाउट कैलकुलेटर कर ही नहीं सकता और वैसे क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। सो मल्टीपल एग्जाम्स नहीं होते हैं किसी भी, हमारे लिए मल्टीपल एग्जाम्स नहीं है क्योंकि हम मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए मल्टीपल एग्जाम्स नहीं है, हमारे लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है। क्यों? क्योंकि सिलेबस सेम है, राइट। सो जो एक और क्वेश्चन है जो कि काफ़ी एक बंदे ने पूछा था मुझसे कि सर मैनुअल कैलकुलेशन जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड जहाँ पर कैलकुलेटर नहीं होता, शायद बार्क में भी कैलकुलेटर नहीं है, मुझे याद नहीं है। सो इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर इंजीनियर शायद आईआरएमएस में भी ऐसा ही हो जाए, एसएससी जेईई, ये 3 एग्ज़ाम तो अभी मेरे को पता है कि जिसमें कैलकुलेटर नहीं है, ओके। सो इसमें क्या करें, देखिए मैनुअल कैलकुलेशन अगर मान लीजिए ऐसा है 2.1 इंटू 5.9 इंटू 10, ठीक है। 2.1 इंटू 5.9 आप कैलकुलेटर में देख लीजिए क्या होता है, मुझे नहीं पता। मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो कैसे करूँगा, मैं यहाँ से 0.1 हटा दूँगा, इसको 2 ले लूँगा, इसको 6, अराउंड 12 होगा अप्रॉक्सीमेट, 12 से थोड़ा सा कम या ज़्यादा ही होगा, इंटू 10 तो 120। मैं इसको लेके सॉल्व करूँगा और इसके जो आसपास जो सबसे नियरेस्ट है। अब देखिए एग्ज़ाम ऐसा है ये आपका कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चिपके चिपके जो होते हैं ना, बहुत क्लोज आंसर नहीं होते हैं, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका अगर एग्जैक्ट आंसर देखें तो 123.9 आता है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में 123.9 अगर एग्जैक्ट आंसर है तो एक तो एग्जैक्ट आंसर होगा, एक 130 होगा और एक 115 होगा, ठीक है। अब 115 तो हो ही नहीं सकता है, 130 हो सकता है, बट मेरा क्लोज क्या आ रहा है 120 से ज़्यादा क्लोज क्या 123.9। तो इस टाइप के अप्रोक्सीमेशन मैं करता था। अब इसका कैसे मैंने प्रैक्टिस की, ये क्या होता है कि व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर मॉक टेस्ट या कोई टेस्ट सीरीज़ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्हेन यू आर सॉल्विंग, सो उस टाइम पे अभी कम से कम आज क्या है अप्रैल मई स्टार्ट हो गया है, ओके। एंड मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने तक आप कैलकुलेटर यूज़ ही मत कीजिए। कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना मतलब अगर मान लीजिए किसी को ऐसे नहीं आता है तो आप डायरेक्ट कीजिए 5.9 इंटू 2.1, 5 9 9 टू जा 18, 1 5 टू जा 10 11, इस टाइप से आप कीजिए जो हम बेसिकली हम करते हैं, राइट। हम ऐसे ही करते हैं ना सॉल्व, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 112.39 इंटू 10 123.9, तो इस टाइप से कीजिए। मेरी जो ये कैलकुलेशन है ये वाली, इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन माइनस एंड प्लस, ये मेरी फास्ट थी स्टार्टिंग से, सो इसलिए मुझे मैनुअल कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। अब ये चीज़ें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ये 2 महीने प्रैक्टिस करेंगे ना, आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। या तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो वैदिक मैथमेटिक्स के काफ़ी ज़्यादा क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पे, ओके। सो आप वैदिक मैथमेटिक्स के देख लीजिए क्लासेस, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। सो मैनुअल कैलकुलेशन की दिक्कत भाई सबको है, सिर्फ आपको नहीं है। जो इस एग्ज़ाम के लिए अपियर होगा सबके पास कैलकुलेटर नहीं है। सो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही होंगी। प्रैक्टिस या तो जैसे मैंने की थी प्रैक्टिस कि भाई करते रहो करते रहो करते रहो, एक बार अपने आप ही दिमाग में सेट हो जाएगी, हाँ भाई 5.1 इंटू 2 5.9 इंटू 2.1 अराउंड 120 होता है। एग्जैक्ट 123 तो नहीं, लेकिन हाँ 120 121 होता है, ख़त्म भाई, मैंने वो लिख दिया। और वो उसके ऊपर आपको ट्रस्ट भी आना चाहिए। ट्रस्ट कैसे आएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे। तो उससे क्या होता है कि एग्ज़ाम में काफ़ी सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे 2019 का पेपर, 2019 का ईएससी का पेपर, तो भाई साहब इसकी जो कैलकुलेशन थी वो अलग ही लेवल की थी। उनको ऐसा लगा था कि हमारे पास था कैलकुलेटर, पर हमारे पास तो कैलकुलेटर नहीं था। पर जब पेपर टफ आया तो हमें क्वेश्चन भी तो कम सॉल्व करने हैं, 150 में से 150 थोड़ी ना होंगे, तब क्वेश्चन भी कम सॉल्व करने। मैंने सिर्फ 94 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। क्वेश्चन कम सॉल्व करने हैं मतलब हमारे पास टाइम ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है मतलब मैं मैनुअल कैलकुलेशन
कर सकता हूँ। यहाँ पर किसी से स्पीड तो लगी नहीं, 94 मैंने सॉल्व किया, मेरी गलतियाँ कम थी, मेरा हो गया। जिसने 120 सॉल्व किए होंगे गलतियाँ भसड़ोंगी, नहीं हुआ है। तो ये मैनुअल कैलकुलेशन का सिर्फ एक ही फंडा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और एक चीज़ मैं आपको, जो मेरे को लगता है काफ़ी चीज़ें जो मैं आपसे हर एक वीडियो में करूँगा, कि ज्ञान की बात करेंगे हम। ज्ञान की बात क्यों? क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो लोग भूल जाते हैं। सबसे फर्स्ट, आज का जो फर्स्ट ज्ञान की बात है, काम। भाई आपका मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, स्टैग्नेंट है, प्रिपरेशन नहीं हो रही, मतलब डिफरेंट ऐसे कुछ, प्रिपरेशन नहीं हो रही, गर्लफ्रेंड भाग गई, दोस्त भाग गया, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास बुक्स नहीं है, मेरे पास फलाना ढिमकाना, 100 तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। 100 तरीके की प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। सबसे फर्स्ट आप काम रहिए, काम रहेंगे। आपका मेन एम है पढ़ाई करना, जितना आपके पास सिलेबस है पहले वो कंप्लीट कीजिए, काम होकर अपने आप सब कुछ आता रहेगा। तो सबसे फर्स्ट आज है काम। तो ठीक है, काम रहिए और करते रहिए तैयारी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा, जो आपके और क्वेश्चन है उसके ऊपर, और कोई कुछ क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो में डाल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगा। और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और साथ में अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।